Very good morning, my dear student. So, after the exam, we are going to learn another chapter, unit number 5. In that, we are going to discuss Helen Keller, page number 73 to 90. So, dear student, here you can see this chapter is about the Helen Keller. Today we are going to see a chapter 5th Helen Keller. सभी बच्चों, आप सबको गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उसका नाम क्या है बच्चों? हेलन केलर। This chapter describes the arrival of Miss Sullivan, the teacher, and how Helen learned to speak through her fingers. So let's start our chapter. Dear student, please keep notebooks, pencil, eraser with you, and this is very beautiful story. I hope you all will like this story because this story is about the something new. ये story एक अच्छी है and आप सबको inspiration मिलने वाला है ये story में से. So whenever you see this video, dear student, please note down some new words that I am going to share with you. Now I am going to start this chapter. I am going to read. Please put your finger on each line. Okay? Very good. Helen Keller. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller, but one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." So this is the story of Helen Keller. कौन सा समय था बच्चों? समर का. A healthy baby girl was born in a small town. ये जो हेलन केलर है, जो स्मॉल बेबी है, उसका बॉर्न कहाँ पे हुआ था? स्मॉल टाउन में. और उसका नाम क्या है? अलाबामा. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. So उसके जो पेरेंट्स थे हेलन के, उसकी मम्मी है, ये उसके पापा है. They love Helen too much, no? Like as your parents also love to you, no? आप सबके मम्मी पापा आपको कितना अच्छा प्यार करते हैं, no? Even teachers always loves to you, no? Teachers भी बहुत प्यार करते हैं. So the same things Helen also gets lots of love. But one day, but एक दिन क्या हुआ बच्चों? The baby became ill and day after day. So ये जो हेलन थी वो एक दिन बीमार हो गई. Her fever stayed high और उसका जो बुखार था वो बहुत ज़्यादा हो गया. आप सब मेरे साथी हैं ना? Yes. Everyone in the family tried to help her to get better, no? हम फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम हमारे फैमिली में बीमार हो जाते हैं तो नो सब टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे बीमारी से बाहर आए. सो सेम थिंग हैपन्स विद हेलन. हेलन के मम्मी पापा और उसके रिलेटिव्स थे, वो सब टेंशन में आ गए और सोचने लगे कि हेलन को ये बीमारी से कैसे बाहर निकाले. But all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." उसकी तबीयत दिन पर दिन क्या हो रही थी? बिगड़ रही थी.
Helen lived, but she was not the same after her illness. हेलन ठीक तो हो गई थी, पर क्या हुआ था बच्चों? वो जिंदा थी, पर जब उसका बुखार थोड़ा कम हुआ, शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, बट पहले थी वैसी नहीं थी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग को जब बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, दो दिन हमारी तबीयत कैसी होती है, इतनी भी अच्छी होती नहीं है। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो गलत हुआ है। Her mother said, at last they found out what was wrong. और उसकी मम्मी और उसके पापा ने ये खोज निकाला कि हेलन के पास क्या हुआ है, क्यों वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। The child would not see or hear. और उसकी मम्मी है और उसके पापा ने फाइंड आउट कर दिया कि हेलन को क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग, नो, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी हेलन पहले जैसा। जो हेलन थी वो सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटल गर्ल, और जो हेलन थी वो बेबी में से थोड़ी लिटल, जब छोटी थी उससे थोड़ा उसका ग्रो अप बढ़ने लगा। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उसके पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ। नो, हम भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं और ठीक नहीं होते तो हमारे मम्मी पापा कितना टेंशन में आ जाते हैं, है ना बच्चों? ओके, सो put your finger properly, dear student. Helen often cried and held on her mother. Give the poor child what she wants, her father would say. So, उसके पापा अभी हेलन को बाहर निकालना चाहते थे। ये जो उसका प्रॉब्लम हुआ था उससे उसके फादर को उसको बाहर निकालना था। उसकी मम्मा को क्या बोलता है कि हेलन को जो भी चाहिए वो तुम अच्छे से दो और उसको ज़्यादा रुलाना नहीं है। Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart. So, many people against of Helen. नो, हेलन के ऊपर सब क्या बोल रहे थे बच्चों कि हेलन अभी कुछ नहीं कर पाएगी, बट उसकी मम्मा थी वो बहुत स्ट्रांग थी, आपकी मम्मा की तरह। नो, वेरी गुड। सो हेलन कुड नॉट हियर और सी, हेलन देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी और उसको बोलने भी तकलीफ होती थी। नो, शी वॉज अ ब्राइट लिटल गर्ल। वो कैसे थी? शी वॉज अ ब्राइट लिटल गर्ल। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ ऐसे लोग रहे थे, वो क्या बोल रहे थे कि हेलन अभी कुछ नहीं सीख पाएगी, पर ऐसा नहीं है। नो, वी ऑल आर ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। नो, हम सब प्यारे बच्चे हैं ईश्वर के। Her mother did not agree. Helen is very smart, she said and added. The problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself. Helen began to grow wild. She would not let anyone comb her hair. So, अभी उसकी मम्मा ने मन में ठान लिया था कि मेरी बच्ची ऐसी नहीं रहेगी। शी विल बी बिकम अ डिफरेंट। नो, सबसे अलग होगी। सो शी लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ। हेलन बिगन टू ग्रो। हेलन का ग्रो अप कैसा होने लगा? स्टार्ट होने लगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ टर्न योर पेज। Okay, next. Her clothes were always dirty. हेलन के क्लोथ्स कैसे थे बच्चों? डर्टी। डर्टी मतलब कि गंदा। She was often angry. Sometimes
She even lie on the floor and kicked her feet. So हेलन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो क्या कर रही है, किक मतलब कि किक करना पैर से, नो. Her parents thought that they should find a teacher. So उसका बिहेवियर क्या हो रहा था, she could not see or hear, so she used to get angry. वो क्या कर रही थी, उसका गुस्सा बहुत आ रहा था. She used to scream at everybody, no. वो सबके ऊपर बहुत हावी हो रही थी और उसका बिहेवियर भी एकदम अलग हो रहा था. सो उसके पेरेंट्स को बहुत उसकी चिंता होने लगी थी. सो हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. सो जो हेलन केलर के पेरेंट्स थे उन्होंने ऐसा सोचा कि हम हेलन के लिए एक अच्छी टीचर लाए, नो. ओके, सो उस टीचर का नाम क्या था बच्चों, मिस सॉल्विन. उसका नाम क्या था, मिस सॉल्विन. A young teacher agreed to help Helen to learn to see the world. So उसकी टीचर थी, ये कौन है पिक्चर में आप देख रहे हो, दिस इज हेलन एंड दिस इज द टीचर. ओके, द टीचर ऑफ हेलन. एंड हेलन के हाथ में क्या है बच्चों, एक बेबी डॉल है, नो, डॉल है. सो हेलन की टीचर थी, वो अग्री हो गई हेलन को हेल्प करने के लिए और उसको ये पूरा वर्ल्ड दिखाने के लिए वो भी रेडी हो गई. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन आफ्टरवर्ड्स. हेलन अ डॉल, DOLL spells doll. So here you can see this is the picture of Helen and Miss Sylvian. ये हेलन की टीचर है और ये हेलन है. आप सब देख सकती हो हेलन कैसे बैठी है और उसके हाथ में क्या है, एक डॉल है और उसकी टीचर उसको क्या सिखा रही है, फिंगर्स की मदद से उसको उसके एक हाथ में डॉल दिया है और एक हाथ में डॉल लिख रही है. उसका स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, DOLL, डॉल. ओके, सो she spelled the word with her fingers into Helen's hand. So हेलन की टीचर थी, उन्होंने हेलन के फिंगर्स के ऊपर, उसके पाम, उसके हथेली के ऊपर स्पेल लिखना स्टार्ट किया. She made the letters with a special hand sign. और उसको ऐसी साइन सिखाई जिससे हेलन को पता चले कि उसकी टीचर उसको क्या सिखा रही है. Helen copied her teacher and spelled. So हेलन ने क्या किया, उसकी आँख, वो आँख से देख भी नहीं सकती या सुन भी नहीं सकती थी, तो उसकी जो साइन थी, नो, फिंगर्स की, जो उसके मैम थे, जो टीचर थे, उन्होंने उसको साइन लैंग्वेज से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हेलन पढ़ने के लिए स्टार्ट हो गई है. देखो, हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL too, but she did not understand what she was doing. Helen liked Miss Sylvian. So अभी हेलन धीरे धीरे सीखने लगी है बच्चों. उसके हाथ में क्या है, डॉल है और एक हाथ में मिस सिल्वियन है. उन्होंने उसको स्पेलिंग सिखाना, फिर ऑब्जेक्ट बताना स्टार्ट कर दिया है. So she is improving. Helen liked Miss Sylvian. She was strict but kind. So उसकी जो टीचर थी हेलन की, वो कैसी थी, स्ट्रिक्ट थी, बट अंदर से एकदम हम्बल, काइंड थी, नो. She spelled a lot of words of Helen. हेलन के सामने बहुत सारे वर्ड्स बोले, नो. On her hand, कैसे बोले, उसके हैंड के अंदर. चलो बच्चों, आपको क्या करना है, आपकी हथेली के ऊपर, आपकी पाम है, उसके ऊपर क्या लिखना है, CAT. आपको देखना नहीं है उसको, ओके. सिर्फ आपको उसको ये साइन लैंग्वेज सीखनी है और आपके माइंड में उसको रखना है, नो. यू ऑल हैव टू डू दिस एक्टिविटी. हाँ, इट इज़ वेरी एंजॉय. CAT. सो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, कैट. ओके. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night. So here the character of Miss Sylvian, she is too much
इंटरेस्टिंग इन हेलन केलर। हेलन केलर को बाहर निकलने में मिस सुल्वियन का बहुत बड़ा हाथ है। वो रात दिन उसके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी टू मेक हेलन अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि हेलन को वो समझाना चाहती थी। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। ओके, हियर यू हैव टू सी दिस पिक्चर। आपको ये पिक्चर अच्छे से देखना है बच्चों। कौन कौन है वहाँ पे? हेलन है और उसकी टीचर है। सो वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उसकी टीचर ने ये सोचा कि मैं हेलन को रनिंग वाटर मतलब कि जो चलता हुआ पानी है उसके अंदर हेलन को अपने हाथ रखने को बोला। Then she spelled water, W-A-T-E-R. Suddenly, Helen understood that W-A-T-E-R meant something wet running over her hand. She understood that words. सो हेलन को धीरे धीरे पता चला कि ये जो रनिंग वाटर है, जो मेरे हाथ से पानी जा रहा है, उसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट टाइम शी डोंट नो एनीथिंग, बट उसकी टीचर है, उसने उसको ऑब्जेक्ट बताया और पानी के अंदर उसको हाथ रखा उसका और महसूस करने को बोला। नो So one day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water. Suddenly Helen understood that water means something wet. So Helen को पता चला कि Helen understood that water means something wet running over her hand. उसके हाथ से ऊपर से जा रहा था। She understood that words. और उसको वो शब्द का मीनिंग अच्छे से पता चल गया। Were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. So in the end of the chapter or in the end of the story, she finally recognized the word water, doll. Now she is able to understand what Miss Sullivan wants to try and how she helped to Helen to come out from that problem. No, उसकी जो मैम थी उन्होंने उसको हेलन को बहुत मदद किया। क्यों मदद किया? टू नो दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, उसको ये दुनिया बताने के लिए। देन शी इज़ इम्प्रूविंग राइट नाउ। नो, वो हेलन को बहुत अच्छा लग रहा है। सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वहाँ यहाँ पे एक पिक्चर है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है? हेलन क्या कर रही है? वाटर, नो, पानी को उसके हाथ से लेना चाहती है। सो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। सो ये सब शब्द से उसको पता चला कि क्या है सब। नो, बिकॉज वो सुन भी नहीं सकती थी और वो देख भी नहीं सकती थी। So dear students, here I complete this beautiful story. I hope you all like the story. Okay, let's see the new words. Dearly. Dearly means what? Priya, no? To love. Illness मतलब कि to seek, बीमार हो जाना. Agreed मतलब कि I am agreed with you, no? Important मतलब कि महत्व. So dear student, in the next video we will discuss the another chapter. I hope you will see this video. Thank you dear children. God bless you.